के बाद नोट्स बना रहे हो ना सारे? एवरीवन इज मेकिंग नोट्स ना? After your chapter, write, give the bullets and start writing. And each one of you will listen. Each one of you will answer me in the chat box. Each one of you will answer me in the chat box. No one is going to answer me by unmuting themselves. Okay. Chalo, fill in the blanks karo. Each one of you are going to answer me in the chat box. I'm waiting for your answers. बेटा आंसर करो. ओके, अरिजीत मित्रा, वेरी गुड, वेरी गुड अरिजीत. The rest of the people are sleeping or what? Only one student has answered me. अरे बाकी लोग कहाँ गए? I have so many people. Smita, Ansha, Shalini, Satyam, Pratyush, Deepika, Asmi. None of you have studied or what? Shall I assume? Ma'am, Shalini, I have sent. हाँ, send it to PCMB3. PCMB3 is me. Send it to PCMB3, guys. Shalini Sinha, Sushri is right. Shalini, your meaning is correct, but the word you have used is incorrect. Means for the English sense, in the English language, it does not make any sense. It is wrong grammatically, but your meaning is correct, as in physics sense. So correct your word, Shalini. स्मिता का आंसर आया, शालिनी का आया, अरिजीत का आया, अंशा वेरी गुड, very good. Rest people, where are they? Are they sleeping? Shalini, still your word is wrong. Word is wrong. Deepika, wrong, 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 wrong. Deepika, wrong. Read out the sentence. Shalini, good. Now it's okay. Shalini, it's okay now. Why only girls are answering? Where are the boys? Asmi, very good. Very good. दीपिका बेटा आपका गलत है, गलत है, गलत है. बाकी लोग कहाँ हैं? वेयर आर द रेस्ट पीपल? प्रत्युष, सत्यम, चलो आई गेस these people don't know the answer, that's why they are not answering. There should be what? Fictional क्या करता है? Opposes. तो डेफिनेटली इतना सिंपल है, इतना सिंपल है. किसका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है? अभी लास्ट में किसने बोला? मैम मैंने बोला. हाँ बेटा तुम्हारा नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, शायद तुम रिजॉइन करो एक बार. ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं फटाफट. फोर्स सब नोट करेंगे कॉपी में. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Answer me in the chat box. Always act to the
applied force. Answer me fast. क्या लिखा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट। रॉन्ग नहीं है अस्मी, प्रत्युष का करेक्ट है, अस्मी गलत है। स्मिता, अच्छा स्मिता, तुम्हारा नाम स्मिता है ना? तेरा सुश्री नाम है, उलट में। यस मैम। स्मिता ना? मैम दोनों है। दोनों है, मैं स्मिता बुलाऊंगी। ओके, दैट्स कंफर्टेबल फॉर मी। ओके, अरिजीत, अरिजीत, हाउ आर यू गोइंग दैट मच इन द डीप? अरिजीत, सिंपल सा आंसर है। अस्मी, क्या कंसेप्ट ले रखा है? गलत है, क्यों गलत हो रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन, इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसे कैसे चलेगा? आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। यू गाइज आर नॉट अटेंटिव। क्लास में इतना कुछ पढ़ाया गया है and you guys have not studied. What is this? Ansha, good. Deepika, very good. Shalini, good. Asmi, now it's okay. Asmi, now it's okay. Okay, okay. हाँ, Arijit, your second answer is okay. चलो. Rest people are sleeping like Pratyush and Satyam, I guess. Satyam, हाँ, Pratyush and Satyam. मैम आई हैव आंसर्ड। प्रत्युष लिखा है क्या? सत्यम का है? प्रत्युष का मुझे नहीं मिला। प्रत्युष, पीसीएमबी 3 में भेजो। सेंड इट टू पीसीएमबी 3, दैट विल बी opposite. Now next will be factors that affect friction. You guys send it me. There are the 3 factors, 1, 2 and 3. जिसको मैं पूछूंगी वो मुझे जवाब देगा क्लास में। Deepika, answer me. Deepika, guys, am I audible? यस मैम। Okay, चलो Deepika, answer me. यस मैम। Answer me. Answer me. What are the factors that affect friction? Deepika, unmute yourself. I'm asking you something. Rest मैम कैन यू people रिपीट say, whose name you are calling? I have written the question. I have written the factors that affect friction. Rest people send it me in the chat box. Fatafat. Deepika, you answer me. You unmute yourself and answer me. Okay, Asmi. Asmi, first one is correct. Next. Shalini, somehow correct. Okay. Correct. Arijit. Okay, very good. Very good. Arijit, good. Deepika is not answering. I guess she's sleeping in our class.
she's not there. Asmi, no beta. Asmi, this is not. Smita, okay. I guess you have written the same thing twice or thrice. Smita. Smita wrote, please check your answer. You Ma'am, I missing was something. disconnected. Can you repeat? Yes, factors that affect friction. Asmi, okay. Ma'am, in which one we have to send? Ma'am, there is two, ma'am. One PCMB and one PCMB3. Okay, ma'am. PCMB3. Okay, ma'am. Ma'am, I was sending all the answers in PCMB. That's why. No, PCMB3 Okay, is me. PCMB3 Okay, is me. Ansha, sorry. Okay. That's very good. This girl is very good. Very good. This is the girl from where I got the answer. Satyam, your guys are going good, but not the perfect answers I'm getting. Ansha is very good. Means she gave the perfect three answers which I was expecting from you guys. Pratyush, okay, Deepika, okay. Chalo, let me write it. The same thing, Satyam, that's the same thing. Polishing and lubrication are the same thing. Okay. पॉलिश करोगे आप तो बॉडी ल्यूब्रिकेट होगा ही, वो एक ही चीज है, ल्यूब्रिकेट करना है या पॉलिश करना है, देयर आर मोर और लेस द सेम थिंग. ओके, पहला क्या इफेक्ट करता है देखना, ये होता है कि नहीं होता है, रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. इसमें क्या आता है, तुम्हारा बॉडी का और तुम्हारा सरफेस का, दोनों का सरफेस का यहाँ पे हमारी बात हो गई. सरफेसेस द टू थिंग्स व्हिच आर गेटिंग इन कांटेक्ट, उसके रफनेस पे हमारा डिपेंड करता है कि नहीं करता है. यस मैम. पहला Yes, ma'am. किया, ये पता है, सबको पता है. यस मैम. अच्छा, ओके. सेकंड इज, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, हाँ. सेकंड वन इज द extent to which the two surfaces press together. दिख रहा है सबको? यस मैम. Okay. The third one is nature of the surface. I got these three perfect answers from only one student, that is Ansha. Ansha, unmute करो एक बार. Let me know from which school you are. Yes, ma'am. From which school you are? Ma'am, from DAV. DAV Model 1 or the Kanyapur one? I'm the Kanyapur one. The Kanyapur one. Okay, very good. Chalo. Let me say you guys, I am also a DAVian, okay? चलो, किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाऊं? Ma'am, can you please explain second point? Second point, the extent to which the surfaces press together. मतलब दो सरफेस है, ठीक है, मान लो सपोज these two are the surfaces, okay? इफ अगर मैं इस सरफेस पर हल्का सा टच करूंगी तो क्या इस पे कितना, जितना फ्रिक्शन होगा, बजाय मैं अगर ज्यादा से प्रेस करूंगी तो इस पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा ना. ट्राई टू डू इट बाय टेकिंग यूजिंग योर टू हैंड, द सिंपल थिंग. जितना ज्यादा मैं ऑब्जेक्ट को प्रेस करूंगी उतना ज्यादा मतलब बॉडी का सरफेस टच कांटेक्ट में आएगा, सरफेसेस उतनी ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएंगे, और उतना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा.
होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अरे किसने पूछा? Yes, किसने ma'am. था? Yes, ma'am. किसने पूछा था? दीपिका ने? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके चलो, अब मुझे टेक्स्ट करोगे सारे लोग, है ना? टेक्स्ट करके मुझे बताओ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, बताओ फटाफट। कितने टाइप्स होते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर देयर, प्लीज लेट मी नो, मैं भूल गई, मुझे बताओ थोड़ा, कितने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं? अस्मी, ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Sushi is also right, but Smita, I mean Shusri, what you need to do, you need to, all these people are right. All these people are right. What I want to say, wait. You guys are saying kinetic and static, but I guess you need to elaborate this. मतलब मुझे सब पार्ट भी तोड़ तोड़ के बताओ। हाँ शालिनी, राइट, एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट। शालिनी, एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट, एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट। हाँ ओके, मुझे काइनेटिक और स्टैटिक इन दोनों को भी तोड़ के सब पार्ट मुझे बताओ, इन सबको भी तोड़ के मुझे सब पार्ट बताओ। प्रत्युष एंड अरिजीत, अरिजीत ने तो बताया, हाँ अरिजीत, ओके हाँ अरिजीत करेक्ट। चलो मैं बताती हूँ। ओके कौन है? स्मिता, वेरी गुड Smita is very good, wow, she wrote the complete definition. Arijit, okay. शालिनी, आई सेड यू ना कि काइनेटिक को मुझे तोड़ करके बताओ, आई नीड the complete sub parts, like the first one is static friction, come on, right, leave it, okay Asmi, Ansha, okay, very good. Come on, write it guys, copy it down. यही होता है तो Yes, ma'am. यही होता है ना, इसके बाहर भी कुछ है क्या? No, ma'am. नहीं, ओके चलो नोट डाउन करो सारे, कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक। शैल आई प्रोसीड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो, the next bullet gives me, what is the next bullet Ma'am? giving me? हाँ yes बोलो। Ma'am, limiting friction will also be a part of this. हाँ, but that's not in your syllabus right now. You will study it, I guess, in 11th Okay. में है वो बस, ठीक है? Okay, तो ma'am. अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, समझ भी नहीं पाओगे, that's a very large topic, okay? Okay, ma'am. Thank you, चलो ma'am. नो इश्यूज, चलो क्या करना था नेक्स्ट बुलेट में, क्या है हमारा? हाँ, when, नोट डाउन करो, कॉपी इट डाउन, when the body is at rest, none of you will answer me, सभी मुझे आंसर चैट बॉक्स में भेजोगे। डैश फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
act on the body. Chalo, answer me in the chat box. You're sleeping? Okay. Pratyush, very good. Arijit, very good. Asmi, very good as usual. She is a very nice girl. She has very clear concept. Thank you, ma'am. I guess she follows the class regularly and she notes down everything very regularly. That's why. Shalini, very good. That's nice. All people are knowing. Ansha, okay, very good. Ansha, and after that, Smita, very good. कोई बचा है? Do I need to say the answer? This simple thing. Is it required कि मैं answer बताऊं? I don't think so. I don't think so. But still, I guess Deepika, what is this? What is this? Sorry, Deepika? ma'am. Ma'am, by mistake, I sent that. चलो सही वाला आंसर भेजो जल्दी से. Waiting. I'm waiting for Deepika only. जल्दी. Your classmates are very smart. They have sent me the answer. बहुत जल्दी भेज दिया सबने. And why you are so late? मैम मेरा थोड़ा लेट हो जाता है, वो टाइपिंग मतलब टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है मेरे को. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. Late answers are accepted but not the wrong ones. Late ही सही answers तो भेजो. क्या है ये? यहाँ पर क्या होगा? स्टैटिक होगा? होगा कि नहीं? यस मैम. होगा ना? Yes, सबको पता ma'am. है. अच्छा मुझे एक बात बताओ. I want a numerical to get solved by you. Can you guys solve a numerical for me? A simple one. मैं देखूं कौन solve करता है सबसे पहले या फिर सबसे पहले नहीं सबसे सही. Shall I do it? Ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. Not from this chapter. Disclaimer is this: the numerical is not from this chapter. मैम आस्क. पक्का? यस मैम. चलो Yes. चलो चलो. Let me ask this. Give the question to you. Okay. Note down करो ये question. Note down कर लेना एक बार. सारे note down करेंगे उसके बाद. Since this is my first class with you, I want to know each and every student. Let me know कि कितना आप लोगों का concept clear है. सब chat box में answer भेजना मुझे. Each one of you will send me the answer in the chat box. I am eagerly waiting for you to answer.
This is a question. Okay. Ma'am, I guess it is very visible. It's मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया. a car moves with a speed of 40 km per hour for 15 minutes. Okay. वो कार है 15 मिनट तक Yes, वो ma'am. 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और उसके बाद वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है फॉर नेक्स्ट 15 मिनट. पहले 15 मिनट्स वो 40 किलोमीटर पर आवर पे गया, फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया. तो इस पूरे टाइम पर उसका टोटल डिस्टेंस कितना है कवर करा है उसने कार ने? सिंपल है. Okay, ma'am. You guys are from class 8 ना, so I should say you this is a step lower than you. This question, I guess it's from 6th or 7th. Okay, Ashmi, very good, very good. This girl is really appreciable, really. Thank you, ma'am. Smita, no, you are. I have asked you the distance. You are sending me the speed. Ashmi is very good. She is very good. Thank you, ma'am. Ashmi, how much did you score in your last class 7 final exam? Ma'am, final exam. What was your percentage, beta? Ma'am, it was 96%. Very good, very good, very good. Congratulations. Thank you, Ansha, very good, very good. Ansha, this girl is so smart. Very good. Did not expect so quick answers from you guys. Really, it's really appreciable. Ansha, you are also from the same school. Yes, ma'am. Okay, you guys are classmates. That's why you are giving good competition to each other, है ना? Yes, ma'am. We are in different sections. Different sections, yet you give good competitions to each other. Chalo, very good. Baki, where are the rest people? Smita, very good, 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 very good. Oh no, beta, Arijit, sorry. Sorry, I am so sorry. I am so sorry, Arijit. Girls are very smart, है ना? I'm getting all the answers from girls only. Yes, ma'am. Proud to say that girls are very smart. Is there any boy to prove me wrong? Satyam, Pratyush, Arijit, कोई है मुझे wrong proof करेगा? That girls are not smart. Boys are also smart. What about Deepika? Why Deepika is not answering? Who is this Krish? Krish, answer me. Deepika, Krish, Pratyush, Satyam, Shalini. कहाँ है ये लोग? नहीं हो रहा मैं बताऊं? अरे बोलो. It's not any big issue. If you cannot solve, बोलो मुझे. I am here to teach you ना. मैं बताऊंगी. Not possible. मैम प्लीज समझा दीजिए. Very good, very good. That should. मैम प्लीज समझा दीजिए. मैं बता रही हूँ. चलो मैं बता रही हूँ. देखो कैसे करते हैं. हम लोगों का यहाँ पर 2 केस दे रखा है, केस 1 और केस 2, है ना? पहला यहाँ पे मैंने लिख दिया केस 1, यहाँ लिख दिया मैंने केस. Very early my answer. Is it correct or wrong? क्या? कौन है ये? नाम बोलना बेटा. अरिजीत. नहीं मैं प्रत्युष. प्रत्युष ने कहाँ भेजा? प्रत्युष ने मेरे पास आंसर ही नहीं भेजा है. PCMB 3 में भेजो बेटा. सॉरी मैम गलती से हो गई. हाँ मुझे भेजो. PCMB 3 में भेजो जल्दी, फटाफट. नहीं प्रत्युष, गलत है.
गलत है बेटा। देखो चलो यहाँ ध्यान दो सारे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। पहला केस में क्या है, टाइम मुझे दे रखा है 15 मिनट, ठीक है। सेकंड केस में भी मुझे टाइम, सेकंड केस बाद में करते हैं, चलो। मिनट दे रखा है 15 मिनट को हम लोग आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 15/60 आर लिख सकते हैं। Yes, ma'am. इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 15 को 4 टाइम्स जाएगा 60, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 आर। इसको नोट डाउन कर लिया। मतलब क्या क्या है, पहले कार मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट्स के लिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, यहाँ पे स्टॉप। एंड ये एंड बीच में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अब दूसरा केस शुरू हो रहा है। दूसरे केस में मेरी स्पीड हो जा रही है, मतलब पहले 15 मिनट में मेरी जो कार है वो मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 15 मिनट्स है, नेक्स्ट 15 मिनट्स में मेरी कार मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले जो 15 मिनट्स है, पहले 15 मिनट्स मतलब 1/4 आवर में मेरी जो कार है उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो फर्स्ट केस में हमारा डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, कैन वी राइट कि हमारा स्पीड कितना है 40 इंटू 1/4 होगा किलोमीटर, 4 10 40, कैन वी राइट इट एज 10 किलोमीटर, हो सकता है। Yes, ma'am. ओके चलो, अब सेकेंड वाला, पहला वाला केस हमारा खत्म, पहले 15 मिनट में हमारी कार 40 के स्पीड से मूव करी थी। अब सेकेंड वाला जो हमारा केस है, उस केस में उसमें हमारा कितना दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ 15 मिनट। तो क्या करेंगे, सिमिलरली सेम करेंगे, 15/60 इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको 1/4 सिमिलरली आर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, मेरा स्पीड कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मुझे क्यों मिनट को आर में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आर में है, मिनट पे नहीं है। तो हम लोग मिनट को आर से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, हमें तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर कन्वर्टिंग मिनट्स टू आर। स्पीड हमारी 60 है, डिस्टेंस क्या होगा, सिमिलरली डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमारी स्पीड दे रखी है 60 इनटू टाइम हो गया मेरा 1/4 किलोमीटर, ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर आया यहाँ पर। तो टोटल ये मेरा पहला में आया, दूसरा में आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 10 + 15 दैट्स इक्वल्स टू 25 किलोमीटर। एनी डाउट गाइस, बच्चे को डाउट, No, ma'am. किसी को भी, एनीवन आउट देयर, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। पूरा क्लियर है सबको? Ma'am, now understand. Yes, ma'am. बोलो बोलो, कौन बोल रहा है, किसी को कोई डाउट है? Ma'am, now understand. समझ में आ गया तो? Yes, ma'am. Okay, it's Yes, better you guys have understood. चलो, let's turn back again to our syllabus. कहाँ तक हम लोगों ने करा था? When the body is at rest, static force of friction acts on the body. Okay, यही था ना, यही थे ना हम लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, इसको भी नोट डाउन करना सारे कॉपी में, ताकि बाद में ऐसी कोई गलती नहीं हो। जस्ट वेट बेटा। ओके अब चैट बॉक्स में आंसर करना सब। स्लाइडिंग फ्रिक्शन is dash than चलो, सबको दिख रहा है ना? Yes, ma'am. आंसर्स क्यों नहीं आ रहे फिर? Nita, okay, very good, very good, very good. Ashmi, very good. Love these students. These are very good. Arijit, very good, very good. That's so good. चलो,
Means you guys have Ashmi, हाँ, very good. Ashmi ने तो बता दिया पहले. बाकी लोग दीपिका, सत्यम, प्रत्युष, शालिनी, very good. Deepika, very good. Yes, Ansha, very good. Ansha, your name is Shri or just Ansha? Ma'am, my full name is Shri Ansha. Shri Ansha. So I can call you Ansha only. Yes, ma'am. Okay. Very good, very good. Baki log, where are the rest people? Pratyush and some Krish was there in our class. Krish. Who is this Krish? No reply. Satyam, no reply. Is Satyam in our class? Satyam? No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा तुम हो तो रिप्लाई ये करो, मैसेज आंसर दो. Yes, ma'am. आंसर करो आंसर फटाफट. बाकी सारों ने रिप्लाई कर दिया, आंसर दे दिया. चलो, दिस विल बी ऑलवेज स्मॉलर बोलो, लेस बोलो, जो भी बोलो, वॉट एवर यू लाइक इट. अच्छा, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस और यू गाइज हैव द कंसेप्ट? एनी वन ऑफ यू विल लाइक टू एक्सप्लेन मी दिस? Yes, No ma'am. idea. Yes, ma'am. Oh, अच्छा, Ma'am, shall I explain it? हाँ, explain. चलो, do it for me. Ma'am, Do can I it tell in for me. Hindi? हाँ, definitely बेटा, you can. हिंदी में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम, जो फ्रिक्शन होता है दो सरफेस के बीच में, उसको कहते हैं फ्रिक्शन. वो स्लाइडिंग उस टाइम होता है जब कैसे बताऊं, जब कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है. नहीं, स्लाइडिंग में कांटेक्ट तुम्हारा कम होता है, स्टैटिक में कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है ना? यही कहना चाह रही थी ना? यस मैम. वो वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे. Ma'am, can I explain in English? Ma'am, may I explain? No need. I explained. I already explained. सत्यम समझ में आया? सत्यम is not. हाँ. Yes, ma'am. Okay, चलो. अब मुझे बताइए, आंसर टेक्स्ट करोगे सारे लोग, है ना? When a body rolls over. Are you guys making notes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Writing. Yes, ma'am. Okay. Text me, फटाफट. Waiting for your answers. Smita, very good. Smita, very good. Arijit, very good, very good. Ashmi, Shalini, wow. Shout out to you students, you are very good. Deepika, very good. Chalo, I guess everyone knows it. I need not explain anything. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करना होगा, किसी को एक्सप्लेन करना होगा, जिससे बेसिक ABCD ऑफ फ्रिक्शन, है ना? रोलिंग कहेंगे कि नहीं? Yes, अरे ma'am. बोलो भाई. Yes, I am ma'am. shouting like a stupid. मैम, No one मैम is वो बॉडी पे रोल कर रहा है
तो रोलिंग Yes, ही ma'am. होगा. Rolling Yes, ma'am. It's हाँ, friction. हाँ. Please be responsive, guys, because I cannot teach to icons ना. Because सारे म्यूट कर रखे हो तुम लोगों ने, and I am looking at my screen and shouting. It looks like I am a mad or a stupid person. I need a responses. If you guys don't respond me, how will I teach? I'm not teaching my mobile phone or not the icons that you have put in your DPs, right? Please be responsive in my class. Okay, Chalo. ma'am. Okay, ma'am. Rolling friction is dash than jaldi. फटाफट चैट में रिप्लाई आना चाहिए. आया किसी का? आई गेस. हाँ, अस्मी, वेरी गुड. ओ शालिनी. अरिजीत, वेरी गुड. शालिनी, बेटा चेक योरसेल्फ ना. थोड़ा सा मोर कंसंट्रेट. हाँ. अंशा, वेरी गुड. शालिनी, हाँ. वो रिप्लाई, वो आंसर नहीं होगा तो डेफिनेटली यही होगा ना. इफ नॉट ए देन डेफिनेटली द बी विल बी द आंसर. ट्रू और फॉल्स. ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स तो होगा ही. अस्मी, exactly Ashmi, exactly. She is having a great concept. In every question I'm saying that. Very good. Smita, very good. Smita, very good. बाकी बच्चे कहाँ हैं? That Krish और दीपिका, very good. प्रत्युष कहाँ है? सत्यम, प्रत्युष. See these icons, they don't respond. Where are Ma'am, I these have written. people? Pratyush, very good. Chalo. Where is Satyam? Yes, दीपिका ma'am. कहाँ है? Working properly. माइक नहीं वर्क कराना बेटा, आपको टेक्स्ट करना है. मैम हम तब से यस बोल रहे हैं मैम, सुनाई नहीं दे रहा होगा. तुम टेक्स्ट करो ना. मैं PCMB 3 पे आंसर्स टेक्स्ट करो. यू नीड नॉट ओपन योर माइक. टेक्स्ट करो बेटा, मुझे मैसेज करो आंसर. DAV students and they are so like they don't respond ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है. We DAVians are very smart. I guess so. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. चलो मुझे लिखना होगा क्या इसका आंसर? Do I need to write the answer? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. सत्यम का आंसर नहीं आया है तो सत्यम के लिए तो लिखना पड़ेगा ना. सत्यम had not sent me the answer. Same reason. कॉन्टैक्ट का जो सरफेस होगा वो एरिया कम होगा, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लिख के बताओ. एक पहला बताओ. अरे जितने हैं बता दो, मुझे 3 जानने हैं. The 3 major ones. What do you have studied? Shalini, very good. That's so smart of you. Asmi, good. Making balance anything. You can say it. But the major one you are missing, I guess. Asmi, बेटा एक बार ध्यान देना.
ओके मैम। जो फ्रिक्शन का सबसे मेन चीज होता है ना, वो मिस कर रहे हो आप। शालिनी, नो, दिस इज नॉट द मेजर इफेक्ट, दिस इज नॉट द मेजर इफेक्ट। पहला वाला वेरी गुड, पहला वाला परफेक्ट है, नॉट द मेजर वन, सेकंड वन इज नॉट द मेजर वन। बाकी स्मिता कहाँ है? स्मिता, प्रत्युष, दीपिका, आंशा, अरिजीत, दीपिका। आई एम आस्किंग अबाउट द मेजर इफेक्ट। एडवांटेज नहीं पूछा दीपिका, वो तो एडवांटेज हो गया ना जो तुम कह रही हो। मैं मेजर इफेक्ट पूछ रही हूँ। स्मिता, इसमें तुमने इफेक्ट मतलब मेरिट और डिमेरिट लिख दिया स्मिता, तुमने इफेक्ट नहीं लिखा। इफेक्ट पहला वाला ही लिखा है, पहला वाला ही इफेक्ट है, बाकी मेरिट और डिमेरिट हो गया। मैं इफेक्ट पूछ रही हूँ। हाँ वही वही असली, व्हाट यू सेड ना, वही मैं कहना चाह रही हूँ, वही मैं कहना चाह रही थी। ओके मैम। अंशा, ओनली स्लाइडिंग अंशा। स्मिता, कहाँ से बेटा, कहाँ से? वेरी गुड, वेरी गुड, स्मिता इज वेरी गुड, वेरी गुड। अस्मी, okay, okay, now chalo chalo chalo, let me do it for you. First one is ये होगा कि नहीं होगा? यस मैम। Yes, ma'am. मैम ये पक्का से होगा। होगा, पक्का होगा ना ये वाला? यस मैम। यस मैम। होगा। दूसरा नंबर लिखो, सारे लोग लिखोगे। ये होगा, यस मैम। पक्का होगा? यस मैम। ओके। थर्ड नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग बचपन से जानते हैं, जानते हैं ना, होगा कि नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। चलो ये तीनों मेन 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 इफेक्ट्स हुए फ्रिक्शन के। सबसे मेन इफेक्ट यही तीनों हुआ। अरे बच्चे बोलो। यस मैम। हाँ Yes, ma'am. मैम। बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं अपने डिवाइस को देख करके कंटिन्यूअसली I'm shouting and I look like a stupid. Kids, if you don't speak to me, how will I know? This is online class ना। चलो दूसरा लिखो। एक काम करो, ये बहुत बड़ा है, इसको ना चैट मत करो। मैं जिसको सुनो 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 सुनो, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो बहुत बड़ा है। मैं जिसको बोलूंगी वो मुझे समझाएगा। असली मुझे ma'am. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, हाँ समझा दो बेटा, क्या Ma'am, I have a doubt. मैम फ्रिक्शन बोलो। हेल्प्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। इसको डाउट है? एक सेकंड असली, वेट वेट बेटा, इसको डाउट ओके है? मैम। Ma'am, हमको। हाँ बोलो बोलो प्रत्युष, बोलो बेटा। मैम आप लिखे थर्ड पॉइंट में फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, हाँ। लेकिन मैम लेकिन फ्रिक्शन का चलते ही मोशन जनरेट भी होता है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगा। मोशन को अपोज करता है ना। फ्रिक्शन क्या है? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं ना। फ्रिक्शन तो मोशन जनरेट नहीं करता, फ्रिक्शन मोशन को स्टॉप कराता है। बात समझ में Okay, आ ma'am. रही है? यस मैम। फ्रिक्शन जो है वो मोशन अपोज करता है।
हमारा हम जो वॉक कर रहे हैं या फिर हमने एक फुटबॉल को एक ग्राउंड से स्लाइड करा दिया, थोड़ी देर बाद जाकर के वो बॉल रुक जाता है। मोशन किस वजह से हुआ? क्योंकि हम लोगों ने बॉल को मोशन दिया, हम लोगों ने बॉल पे फोर्स दिया, इस वजह से बॉल मेरा स्ट्राइक कर रहा है, मैंने किक किया फुटबॉल को, तो मैंने जो फोर्स दिया उस वजह से बॉडी में मोशन आया, उस फुटबॉल में मोशन आया, तो वो फुटबॉल मूव करा फुटबॉल ने। बट फुटबॉल रुका क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो ग्राउंड है, उसने फ्रिक्शन दिया फुटबॉल को, इसलिए कुछ टाइम के बाद जाकर के मेरा फुटबॉल रुक गया। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जब हम किक करते हैं बॉल को, तो किक करने के बाद वो कभी रुकता ही नहीं, वो तो चलता ही जाता। बट ऐसा तो नहीं होता है, एक टाइम के बाद आके वो रुक जाता है ना। तो मेरा फोर्स जो दिया, जो हमने फोर्स दिया, उस फोर्स की वजह से वो मूव करा और फिर फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप कर जाता है। एम आई क्लियर प्रत्युष? Yes, ma'am, it's now clear. ओके। चलो अस्मी, एक्सप्लेन मी। Yes, ma'am. Ma'am, first friction help us to walk on ground. Ma'am, वेरी गुड। second, brakes are used in cars to stop the car. It helps in generation of heat ओके। when we rub Okay. our hands. And ma'am, Isn't friction responsible for writing on the pen and paper? yes, ma'am. हाँ, फ्रिक्शन ही है ना, है ना? मैम चलो फ्रिक्शन तो हर जगह यूज होता है, हर नहीं, तरफ में। शूज, नहीं, हर हर जगह मैम जब हम लोग useful नहीं फुटबॉल होता है। खेलते हैं तो शूज में भी फ्रिक्शन होता है। क्या, किसमें, कौन बोल रही है? मैम शालिनी, मैं हाँ, बोल रही फुटबॉल हूँ खेलते हैं तो शालिनी। मैम शूज जो स्पाइक्स होता है उसमें, वो भी हमारे फ्रिक्शन में मदद करता है, जिससे हम हाँ, लोग स्लिप friction, ना हो सके। इसीलिए बहुत तो ज्यादा इसीलिए तो हम यूजेस लोग फ्रिक्शन को बोलते, क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा ना कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो हमारा काम भी नहीं होगा, और फ्रिक्शन अगर है Yes, तो वो ma'am. प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब वो एविल भी है, इट्स अ डेविल, मतलब ये खराब चीज भी है, लेकिन ये जो खराब चीज है ना वो हमें बहुत यूजफुल भी है, मतलब वो अच्छी भी है और वो बुरी भी है, कहीं कहीं वो अच्छी है, कहीं कहीं वो बुरी भी है। कई बार हमारा हीट जनरेट हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, जो कि अननेसेसरी एनर्जी लॉस भी करता है फ्रिक्शन की वजह से, जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि एनर्जी लॉस हो हमारे डिवाइस में, बट फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता है। वहां पे तो हमारे पैसे का नुकसान हो रहा है ना, तो वहां पर हमारे लिए फ्रिक्शन सही नहीं है। बहुत Yes, सारी ma'am. चीजें हैं जहाँ पर मतलब हमारा जो अप्लायंस खराब हो जाता है, वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, वो सब भी हो जाता है, तो वो हीट एनर्जी वेस्ट होता है हमारा। और कई सारे ऑब्जेक्ट जैसे जहाँ पे हम लोग मोशन ही चाहते हैं, हम लोग स्टॉप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहां पे भी हमारा बॉडी स्टॉप हो जा रहा है, तो ये भी तो फ्रिक्शन की प्रॉब्लम की वजह से ही हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन जितना जरूरी है उतना नुकसानदायक भी है। राइट जैसे Yes, ma'am. चॉकलेट, जैसे तुम लोग खा रहे हो, पता है कि वो नुकसानदायक है, बट एज ऑफ योर टेस्ट यू गाइस आर ईटिंग इट, तो क्या है, वो टेस्ट अच्छा है, वो जरूरी भी Yes, है, ma'am. बट वो दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो खराब Yes, भी है। ma'am. तो दैट्स लाइक समथिंग अबाउट फ्रिक्शन। ओके Ma'am, one more. बोलो। Ma'am, friction between roads and tires provides force to accelerate the car. Very good. There are multiple advantages and there are multiple disadvantages. So I'll make you write the 3 basic ones what we use daily. Okay? मैं लिखती हूँ, फटाफट सारे कॉपी करेंगे। ओके ओके अरे Okay, ma'am. Okay, ma'am. बोलो बेटा। हाँ अरिजीत, करेक्ट। जिम्नास्ट यूज करते, बहुत सारे यूज है। अंशा ने भी मैसेज करा, वेरी गुड।
Ma'am, your video has stopped. Yes, ma'am. Is my video not working? No, Ma'am, now ma'am, it's it is working. Uh, कॉपी कर लिया सबने? Ma'am, please wait, ma'am. Yes, ma'am. Copy it soon, बेटा. Ma'am, completed. I'm completed. Completed. Very good. Okay. किसी का बचा है? Ma'am, please wait. Please wait. Okay, I'm waiting. Ma'am, written. Yes, Written. ma'am. Okay, चलो. अब आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. yes. Yes, ma'am. चलो. Disadvantages. बुलेट पर आना भूल गई मैं. Disadvantages of friction. रुको मैं बताऊंगी कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा ये. Ma'am, can I? कौन बोला? Ma'am, I? अस्मी पिछला वाला आपने करा था ना? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Next this time let Smita explain करो, थोड़ा समझाओ मुझे. Smita, is she there? Ma'am, मैं एक बोलूं? रुक जा शालिनी बेटा, पहले स्मिता को बताने दो फिर से, ठीक है? It's her turn. स्मिता, Yes, ma'am. बोलो. बोलो. आई गेस तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा है. काम करो, तुम टेक्स्ट कर दो, ओके? और तब तक शालिनी बताओ. स्मिता म्यूट कर दो, तुम्हारा मैम माइक. जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि मैम आपने बताया था डिसएडवांटेजेस कि फ्रिक्शन जो होता है वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है जो कि वेस्ट होता है एनर्जी का. आपने एक ये एग्जांपल दिया था मुझे. यस मैम, आपने एक ये एग्जांपल दिया था. और मैम इसमें बहुत मनी का भी बहुत ये होता है, लॉस होता है ये फ्रिक्शन की वजह से. मैम जो ये फ्रिक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है मोशन में, तो उसकी वजह से ना हमारा जो स्पीड होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का वो ना धीरे मतलब स्लो हो जाता है उसका रफ्तार फ्रिक्शन की वजह से. ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है. चलो चलो हो गया. बस इतना चलो. ही. स्मिता ने भी मुझे भेजा है friction produces heat which damages the moving parts of the machine. Okay. Friction produces wear and tear on the contacting surfaces. This reduces the life of the machine parts. एक ही चीज है ना बेटा ये? Tires and shoe soles एक ही चीज है ये. A lot of energy is wasted in overcoming the friction before an object starts moving. तो वहाँ भी energy waste होता है. Okay. Forest fires also caused due to the friction between tree and branches. Okay. Arijit, friction slows the speed of an object. Very good, very good, very good, very good. चलो चलो. Let's write. 2-3 मैं फटाफट लिख देती हूँ, उसको आप लोग फटाफट जॉट डाउन कर लोगे. Friction causes moving object. Asmi, friction also causes sparks, overheating, and machine breakdowns. Hanji, when we write in a copy with a pencil, it gets blunt because of friction. No, it's not always gets blunt because of friction. No, Deepika, it's not always due to just friction. Causes moving. That's also due to pressure. Friction causes moving objects to stop or slow down. First point. The second one,
friction. Is my video visible? Yes, ma'am. Vision is clear. Friction produces. Actually, I'm not able to shout. I took lots of classes today. Heat causing wastage of energy in machine. है ना? 2 नंबर होगा कि नहीं होगा? सारे इतने आइडल क्यों बैठे Yes, हो? ma'am. हाँ मैम होगा। मूर्ति बनकर बैठे हो सारे के सारे। अभी दुर्गा पूजा थोड़ी आए कि सारे मूर्ति बन गए हो। मैम वो लिख रहे थे ना, इसलिए मैम नहीं दे पा रहे जल्दी। बात करो भैया, अदरवाइज मैं किसको पढ़ाऊंगी? अपने फोन को। यस मैम, देंगे। Friction causes wear and tear of moving. Friction also leads. That's I'm on writing, Ansha. Tear of moving parts of machinery. Are you guys enjoying this class or it's getting bored? Yes ma'am, we are enjoying. Yes, ma'am. Ma'am, by asking questions, it's very interesting. The class is Yes interesting. ma'am. Yes, ma'am. I'm asking and answering questions. Acha. And what am I making you understand? Are you able to understand my concept? What am I trying to speak and what I'm trying to make you understand? Yes ma'am, clearly. Yes, ma'am. It's clear. Okay, chalo, very good. Keep shouting in my class. Okay, not the unnecessary shout. Shouting related to the studies only. Keep shouting. That I like it. If you guys ask me doubts, if you talk to me regarding the questions and answer, that's very useful for not only for you, for the rest of the class also. Excuse me, ma'am. हाँ, बोलो. Ma'am, can you explain the difference between the 2 points of the disadvantages of friction? फिर से बोलो बेटा, मैं आवाज कट आ रही थी. Ma'am, can you explain the differences between these 2 points? Between the last definitely. If you are eager to, you can definitely. Why would I obstruct you, beta? Definitely, most welcome. करो, explain करो. करो. ओ मतलब मुझे बोल रहे हो क्या explain करने के लिए? Yes, ma'am. ओ अच्छा, किसने बोला ये? I'm sorry. कौन था ये? Ma'am, Sister Smita. स्मिता. अच्छा, स्मिता बोल रही है कि मैं explain करो. I thought you are going to explain it. The second and third one तो? Yes, ma'am. हाँ, देखो क्या होता है. हीट प्रोड्यूस होता है ना बहुत सारे मशीन्स में जब हम लोग वर्क करते हैं, जैसे मोटर या जनरेटर. देखा है कभी? जनरेटर देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या कोई भी हीटिंग अप्लायंस देख लो ना, कोई भी हीटिंग अप्लायंस. अगर फैन भी तुम्हारा बहुत देर तक चल रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो स्विच होता है वो गर्म हो जाता है. इट गेट्स हीटेड अप स्लाइटली. तो इसका मतलब क्या है कि द एनर्जी, व्हाट द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी व्हाट यू आर सप्लाइंग टू द अप्लायंस. फैन बहुत देर तक चल रहा है, चलने के बाद क्या होगा कि वो फैन का जो मोटर है वो गर्म हो जाएगा. क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि जो तुम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम सप्लाई कर रहे हो, ताकि वो तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो. फैन मूव करता है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम सप्लाई कर रहे हो, that not gets fully converted to mechanical energy. Some part of the energy due to friction is released in the form of heat energy by heating the appliances, by heating the motor in the outside. तो वो heat energy के तौर पर निकल जाता है. तो ऐसे क्या होगा कि हमने जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, मुझे वो पूरा मैकेनिकल में नहीं मिला, तो मेरा क्या हो गया, एनर्जी लॉस हो गया. ये हुआ पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट मेरा हीट कर रहा है, मेरा जो अप्लायंस है वो हीट हो रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत सारा जो डैमेज भी होता है मेरे अप्लायंस में. मेरा जो कंडेंसर है उसको प्रॉब्लम होगा, मेरा जो कैपेसिटर है उसको प्रॉब्लम होगा, मेरा जो रेजिस्टर है उसको प्रॉब्लम होगा, मेरी जो वायर्स है, जो मैंने वायर्स
मैंने दे रखी है फैन में, जो फैन में वायर्स है, दैट विल आल्सो गेट मेल्टेड डाउन, वो भी तो होगा ना फ्रिक्शन की वजह से, वो सारा मेरा अप्लायंस भी होगा, तो मेरा एनर्जी, पहले वाले केस में मेरा एनर्जी लॉस होता है, जिस वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे पैसे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं तो बिल पे किसका कर रही हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही हूँ ना, तो मैं तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही हूँ, लेकिन मैं जितना बिल पे कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मुझे उतनी हवा तो नहीं मिल रही है फैन से, कुछ एक पार्ट तो मेरा तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है हीट एनर्जी में, तो मुझे वहां नुकसान हो रहा है पहला। दूसरा क्या हो रहा है कि उस हीट की वजह से मेरे अप्लायंस को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा बहुत सारा पार्ट भी खराब हो जा रहा है, हीट अप होके बोलते ना, गर्म हो गया, गर्म होकर पिघल गया, मेरा वायर टूट जा रहा है, तो उस वजह से भी मुझे इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, ये हुआ था। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. स्मिता, Yes, हेलो, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके चलो, अब लास्ट का 2-3 बचा है, लेट्स jot it down and finish it up. Okay. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे भी याद है कि मैंने भी जो पढ़ाई करी थी ना 8th में, जब मैं भी थी, तब मैंने भी इसको याद करा था। आई गेस यू गाइस वुड आल्सो रिमेम्बर दैट। मैम मुझे ऊपर का दिख नहीं रहा है स्क्रीन। यस मैम, थोड़ा सा कॉपी नीचे कीजिए ना। मैम ओके, हाँ मैम अभी दिख रहा है। हाँ ओके ओके, अभी मैंने इसको बोला भी था। चलो मुझे बताओ, कोई एक बताओ, शालिनी बताएगी। शालिनी, नो आंसर। ओके, टेक्स्ट करो बेटा, सारे लोग टेक्स्ट करो। हाँ, स्मिता, अंशा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्मिता, अंशा, अस्मी, ओके, अरिजीत। This statement makes me remember of my 8th class. I Ma'am, remember evil. this statement from, हाँ evil. मैंने बचपन में इसको बहुत रटा था। Evil नहीं होता मैम, है। आपने बोला था ना कि अच्छा के भी मतलब ये अच्छा के लिए भी काम होता है, इवल के लिए भी काम होता है। कंफ्यूज हो गई थी Full फर्स्ट hearted। टाइम, तो ये मुझे पता चला बहुत कि नहीं evil इम्पोर्टेंट होता है। स्टेटमेंट है। Evil, देखो ये क्या है ना, ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तब से लेकर आज तक आई हैव मक्ड इट अप टिल नाउ, मैं आज तक नहीं भूली हूँ, इतने साल हो गए मैंने 8th पास किए हुए। तो ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि इसमें हो जा रहा है नेसेसरी भी वर्ड आ रहा है, मतलब ये जरूरी भी है, और इविल भी आ रहा है, मतलब ये खराब भी है। दैट्स इट। यस ये हाँ ओके चलो, इसमें दोनों। चलो नेक्स्ट इज वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन बाय। Ma'am, your video is paused. हाँ, मुझे 2 पॉइंट्स जानना है, मुझे 2 पॉइंट्स जानने हैं। टेक्स्ट करो जल्दी जल्दी, क्या हो रहा है? What happened, guys? Asmi, very good. Arijit, very good. Very good, very good. शालिनी, शालिनी जो तुमने लिखा है उसको क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है? मतलब जो टर्म तुमने लिखा है वो भी तो मेंशन करो। मैम इंक्रीज करना है मैम, बढ़ाना है। हाँ डेफिनेटली इंक्रीज लिखोगे ना। मैम इंक्रीज छूट गया, सॉरी गलती से। हाँ कोई ना, स्मिता हमेशा बड़ा लिखती है। Wait, let me read. Friction can be increased by increasing the. Okay, okay, okay. Smita, very good. Ansha, mass. Ansha, are you sure increasing the mass? No, but mass से कोई relation नहीं है. Smita, flying. No, force से क्या relation है आपका? No, that's not true. Mass. No, beta.
मास एंड फोर्स से क्या रिलेशन है? मास एंड फोर्स से तो आप फोर्स बढ़ा सकते हो, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसी भी बॉडी का एक कांस्टेंट होता है ना। हाँ दीपिका, चलो चलो चलो, हाँ हाँ अश्विनी, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट। पहला वन, increasing the area of contact or pressing, सब लिखो सारे लोग, अंशा, श्रेत, हाँ that's the application ना, that's application अंशा, by pressing the surfaces together more strongly, okay. The second one, by increasing the Ma'am, हाँ ma'am, your screen is hazy, so can you repeat the number 1? increasing the area of contact or pressing the surfaces together more strongly. अंशा, जो आपने बोला ना कि threads are made in the tires of vehicle to increase the friction, तो threads जो बनाए जाते हैं ना, उसी को बोल रहे हैं, जो threads जो तुम बना रही हो, that is the process of increasing the roughness of the surface. ये थ्रेड मतलब रफनेस कहाँ कहाँ बढ़ाया जाता है, तो उसका एग्जाम्पल में ये आ गया कि हाँ टायर्स में कर देते हैं, शूज में थ्रेड बढ़ा देते हैं ताकि हम लोग गिरे नहीं while playing. So these are the applications of increasing the roughness. Am I clear? Yes, ma'am. हाँ, the simple thing is the roughness. Increase करेंगे तो वो शूज में भी करेंगे, देन फिर तुम्हारे टायर्स में भी करेंगे. मैम फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए जो शूज में ना स्पाइक्स लगा दिया जाता है, जिससे हाँ फ्रिक्शन ज्यादा हाँ, पैदा होता है. that's the thing, threading of the shoes, उसी को threading of the shoes बोलते हैं. चलो, next one is reducing. अच्छा चलो, we can reduce friction by, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी. Asmi. Very good, very good. This girl is very smart. Very good. चलो. फटाफट आंसर आता है इसकी तरफ से. शालिनी, very good. Arijit, very good, very good. Ansha, okay. एक ही चीज तो लिख दिया बेटा आपने, दोनों तो एक ही चीज हो गया ना. स्मिता, स्मिता is right, big answer. Wait. No. हाँ, very good, very good. इतना बड़ा लिख दिया, 2 लाइन का आंसर तो इतना लिख दिया. हाँ, very good. दीपिका, दीपिका ने भी सही लिखा है, बहुत सही लिखा है बेटा. मतलब मेरी क्लास में सारे बच्चे बहुत स्मार्ट है ना, सारों को आंसर्स पता है. I did not shout a lot to make you understand, है नहीं? है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Arijit, very good. Shalini, very good. Very good, very good, very good, very good. This class is quite answerable and very smart class. बहुत अच्छा लगा पढ़ा के. चलो, that was my first class with you guys and I had a good experience.
Deepika. That's very true. चल मैं लिखती हूँ. Ashmi, when objects are rolled over the surface, friction becomes roller. That is only the reducing the area of the contact, ना? Yes, ma'am. Ashmi, Yes, वही ma'am. उसी को तो बोलते हैं ना कि हम लोगों ने रोल कराया, मतलब क्या रोल करने से हमारा फ्रिक्शन कम हुआ. कम कैसे हुआ? क्योंकि हमारा सरफेस एरिया जो है, कॉन्टैक्ट का जो एरिया है वो कम हो गया. उसको Yes, मैंने ma'am. डायरेक्टली लिख दिया. हाँ, ये ध्यान रखना कि जो तुम आंसर दे रही हो ना, ये वाला, ये जो आंसर दिया, या फिर लास्ट बार अभी तुमने ही आंसर दिया था ना कि वो आई गेस शूज वाला, राइट? वो क्या हो गया? वो तुम्हारा एप्लीकेशन काइंड ऑफ में चला मैम जा रहा है. मैंने शूज वाला नहीं दिया था. नहीं दिया था, किसी और ने दिया था. मैम शालिनी ने दिया था. अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ, सारे मेरे बच्चे हो. देखो उसमें क्या हो जा रहा है कि ये तुम लोगों का जो आंसर है वो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन की तरफ चला जा रहा है. मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए. तो बहुत सही है रोल करने के लिए. मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल कराऊंगी तो मेरा फ्रिक्शन कम हो जाएगा एज कम्पेयर मैं उसको डायरेक्टली मूव कराऊंगी. तो मैं उसको क्यों ना सीधा सीधा लिख दूं कि मैंने रोल कराने में क्या कर रहे हैं हम लोग, अल्टीमेटली एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो कम कर रहे हैं. तो Yes, क्यों ना मैं ma'am. उसको डायरेक्टली लिख दूं. मतलब सीधा स्लाइडिंग से मेरा कम होता है तुम्हारा, सॉरी स्टैटिक से मेरा कम होता है रोलिंग, स्लाइडिंग में, स्लाइडिंग से कम होता है रोलिंग में. तो 3 प्रोसेस है ना. तो मैं उसको डायरेक्टली क्यों ना लिख दूं कि मैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ही कम करा दूंगी, तो इसमें सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे. बात समझ में आई? हाँ मैम. अब क्या लिखेंगे? बाय मेकिंग द सरफेसेस स्मूथ. अब इसी में देखो स्मूथ लिख दिया ना मैंने, इसमें सारा आ गया. इसमें लाइक lubricating, पॉलिशिंग, ग्रीसिंग, ये सारे जो पॉइंट्स है ना वो सारे इसी में आ जाएंगे. मैंने जो स्मूथ लिख दिया, इसमें मेरा लुब्रिकेशन, पॉलिशिंग, ग्रीसिंग सब आ गया स्मूथ में ही. जैसे वैसे सिमिलरली मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट मैंने लिख दिया, उसमें मेरा सारा आ गया. जैसे मेरा हो गया तुम्हारा स्टैटिक से स्लाइडिंग, स्लाइडिंग से रोलिंग. मुझे उतना लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं स्टैटिक से अगर स्लाइडिंग में जाऊंगी तो मेरा होगा, स्लाइडिंग से रोलिंग में जाऊंगी तो कम होगा. डायरेक्टली लिख दिया कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम करो भैया, अपना अपना समझ में आया? हाँ मैम. यस मैम. Yes. चलो चलो चलो, सबने कंप्लीट कर लिया लिखना लिखना? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, चलो क्लास कंक्लूड करें आज की. बोलो क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है. हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. यस मैम. चलो लेट्स कंक्लूड द क्लास फॉर टुडे. थैंक यू फॉर दिस ऑसम क्लास स्टूडेंट्स. मैंने क्लास लिया, बहुत अच्छा लगा. ओके, कीप स्टडिंग. गुड. ओके, ओके मैम. ओके मैम. बाय मैम. गुड नाइट मैम. बाय मैम. थैंक यू मैम. गुड नाइट. Good night. Have a nice day. Bye.